Sectional orthographic projection, question number 2. This is the question. Okay, and if you see this question, here you can see a cutting plane or a section line, and at the end of the section it is written AA. Means here we are going to cut the object. Okay, now observer will be looking from here, and section plane is this one. So front wala part will be removed. Okay, then whatever we see that we have to draw. Is it clear? Now, second thing is here you can observe what is asked in the question, sectional front view along section AA. So from this side we have to draw sectional front view. It is not normal front view, it is sectional front view. Then top view from here, from front view only you will see from the top side, that will be top view. Okay, and then last question is left hand side view. Is it clear? Now in order to start this, we will see the maximum dimensions which are available to us. So in case of length कैसे मिलेगा? Horizontal maximum distance in the front view. So from this point to this point, तो इधर से इधर ये रेडियस कितना है? 60 का हाफ 30. So 30, then here you can see vertical center line, it meets here. Okay, so from here you can see this distance is 40. So 30 then plus 40, and then here you can see top side the maximum radius is diameter is 40, but bottom side here you can see this object is tapered. नीचे के साइड में डायमीटर कितना है? 60. तो रेडियस कितना होगा? 30. सो दिस 30 प्लस दिस 40 प्लस दिस 30, total is how much? 100. So length is 100. Then width is how much? 80. And height will be from bottommost point to topmost point. So from this point to this point height is 60. Then from here to here 36. So 60 plus 36, and from this level to the top 40. So 60 plus 36 plus 40, 136. Okay, now what I will do, I have already created border, xy line, x1 y1 line and offset. Okay, all layers are created. Now for my reference I will write down here what is length into width into height. Okay, which is outside the border, that will be rough work. So length is equal to how much? 100. Okay, then width is how much? 80. And height is 136. So these dimensions I have written for my reference so that I don't forget it. Okay, now once this is written, we know we have to draw which view? Left hand side view. Means left hand side view will be drawn on right side, so front view will be drawn on left side. So basically front view will be drawn here, top view will be drawn here. This will not be normal front view, sectional front view, and then left hand side view on right hand side. Okay, now we will see this object. See, now understand the difference between normal front view and sectional front view. This part is very important. Now if I tell you I want normal front view, so normal front view when I am observing from this side, see इधर से देख रहे हैं ना हम लोग. So what will be visible? This is visible, this rib is visible, this surface, this part is visible, this part is visible, and this part is visible. So all this thing whatever I have highlighted, that will be visible in the front view. See, now I have told you what will be visible in the front view, right? So if I show you the front view, this will be visible in front view. Okay, एक minute. हाँ, this will be visible in front view except this line. हाँ? What is not visible in the front view? This hole is there, na? This hole will not be visible in the front view. So if you see the front view, there will be these two hidden lines in the front view. Okay, so this is normal front view. Now we will see what is meant by sectional front view. Now observe. देखो, I will take a plane which will be a section plane like this. Okay, now I have cut the object ना. क्या किया है मैंने? ऑब्जेक्ट को कट किया है. Okay, now if you see, if I move this plane, this plane, blue color plane is cutting plane or section plane. So I will move this plane outside. Now this whole object is visible.
Now see, I will start moving inside and that object will start getting cut. एक मिनट हाँ ये देखो. Now see how the object is going to get cut. So the section plane has now touched that cylindrical portion, bottom cylindrical portion. दिख रहा है ये cut हो गया. Blue color portion will be hatching lines. It is getting cut. Now see, if I move ahead, ये जैसे जैसे आगे जा रहे हो. Now just observe this. Can you observe this edge? यहाँ पे सर्कल दिख रहा है, आर्क दिख रहा है छोटा सा. Okay, and then if I move this, that arc will vanish as soon as the surfaces merge. See, ये दिख रहा है आर्क इधर का निकल गया. ओके, सेम वे जब भी कुछ कट होता है ना, बीच में का कुछ भी लाइंस रहेगा वो सब निकलने वाला है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू हैव टू रिमेंबर इन सेक्शनल ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन. जहां पे भी कटिंग प्लेन कट कर रहा है, वो केक जैसा देखने का, केक कट करते हैं ना, तो कुछ केक का कुछ भी साइज होने दो, कुछ भी शेप होने दो, जब कट करोगे सब एक जैसे दिखने लगेगा, मतलब सब शेप्स मर्ज हो जाता है. लाइक दिस, लाइक फॉर एग्जांपल हियर यू कैन सी दिस आर्क इज देयर, स्मॉल आर्क. सो व्हेन आई एम मूविंग द सेक्शन प्लेन, व्हाटएवर इज गेटिंग कट वो सब एक ही ऑब्जेक्ट जैसे दिखेगा. देखो ये सब पूरा मर्ज होते जा रहा है. एंड व्हेन आई मूव इट लाइक दिस, पीछे देखो ये सब पूरा मर्ज हो रहा है. जैसे ही होल आएगा बीच में देखो यहाँ पे एम्प्टी पोर्शन आने लगेगा. कैन यू सी दिस एम्प्टी पोर्शन? बिकॉज मटेरियल इज नॉट देयर, कुछ है ही नहीं तो कट ही नहीं होगा ना वहां पे. तो दैट पोर्शन विल नॉट बी हैचिंग लाइंस देयर, इट विल नॉट बी हैचिंग लाइंस. नाउ सी, आई विल मूव ऑन द बैक साइड. सो इफ आई सिलेक्ट the front plane and if I hatch that, here you can see object will look like this. But क्या होता है, see this rib is getting cut along the length. So there is one rule which you have to remember, special rule in sectional orthographic projection, that whenever the rib is getting cut along the length, we are not going to cut the rib. Rib के लिए एक special rule है. So what I will do, I will move this plane slightly ahead so that the rib is not getting cut. अभी जो दिख रहा है आप लोगों को, ये व्यू रहेगा sectional front view. See this, ये जो दिख रहा है ना, this will be sectional front view. Is it clear? Okay, now if the rib gets cut perpendicularly, means along the thickness of the rib, तो वो केस में rib को कट करने का. Like for example, अगर मैंने rib को यहां से कट किया, okay, if I cut the rib like this, so can you see this rib portion is getting cut? तो रिब में हैचिंग लाइंस आएगा वो टाइम पे. व्हाई? बिकॉज रिब इज गेटिंग कट अलोंग थिकनेस. ओके, बट व्हेन द रिब इज गेटिंग कट अलोंग द लेंथ, ये लेंथ हो गया, तो वो केस में क्या करना है, रिब को कट नहीं करना है. दिस इज अ स्पेशल रूल फॉर सेक्शनल ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन विच यू हैव टू रिमेंबर. तो उसके लिए मैं इसको स्लाइटली थोड़ा आगे लेके आ रहा हूँ. आपको आगे लेके नहीं आना है प्लेन को. दैट इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पज आई हैव मूव्ड दिस. अगर इसको पीछे रखा तो रिब भी कट होगा. तो फाइनली द सेक्शनल फ्रंट व्यू विल लुक लाइक दिस. ये ऐसे दिखेगा. दिस वी हैव टू ड्रॉ. ओके, देन नेक्स्ट विल बी टॉप व्यू. अभी देखो, इफ आई कट द सेक्शन प्लेन, आई मीन इफ आई कट द ऑब्जेक्ट इन द टॉप व्यू, इन द फ्रंट व्यू आई कैन सी दिस एज अ प्लेन ना. सेक्शन प्लेन इज व्हाट, अ प्लेन. बट ये टॉप व्यू में क्या बनेगा, लाइन. हियर यू कैन ऑब्जर्व देयर इज अ लाइन. ओके, एंड हियर यू कैन सी ऑब्जर्वर इज ओवर हियर and the object between the cutting plane, see this is the cutting plane and this is the observer. Object between the cutting plane and the observer has been removed. Is it clear? This is the object. जो आगे था, देखो ये आगे का ऑब्जेक्ट था ना, ये हम लोगों ने निकाल दिया है. The object which is in the front, that we have removed. Okay, why? Because observer यहाँ पे, कटिंग प्लेन लाइन और सेक्शन लाइन यहाँ पे, तो ये बीच में का ऑब्जेक्ट निकाल दिया. ओके, बट व्हेन वी ड्रॉ द टॉप व्यू ऐसे ड्रॉ नहीं करना है. टॉप व्यू इज नॉट सेक्शनल टॉप व्यू, इट इज नॉर्मल टॉप व्यू. तो नॉर्मल टॉप व्यू मतलब बेसिकली ये जो पोर्शन है, सिलेंडर, रिब, देन दिस पोर्शन एंड देन दिस पोर्शन, दिस विल बी विजिबल. तो टॉप व्यू विल बी लाइक दिस. दिस इज हाउ यू विल गेट द टॉप व्यू. एंड ये लाइन दिख रहा है, दिस लाइन विल बी दैट सेक्शन लाइन, और यू कैन से सेक्शन प्लेन. सेक्शन प्लेन विल अपीयर लाइक अ लाइन इन द टॉप व्यू. तो टॉप व्यू नॉर्मली ड्रॉ करना है. ओनली थिंग इज बीच में एक सेक्शन लाइन ड्रॉ करना है. इज इट क्लियर? ओके, सेक्शन लाइन कैसे ड्रॉ करना है इसका सेपरेट वीडियो मैंने भेजा हुआ है आप लोगों को, हाउ टू ड्रॉ सेक्शन लाइन इन ऑटोकैड. ओके, नाउ इन साइड व्यू कौन सा है, लेफ्ट हैंड साइड व्यू. तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू से अगर आप लोग देखोगे ये ड्रॉइंग को,
तो क्या क्या दिखेगा, ये सिलेंडर दिखेगा, देन ये रिब विल बी विजिबल, ये दो रेक्टेंगल विल बी विजिबल, एंड ये जो लॉफ्टेड पार्ट है, टेपर्ड पार्ट, ये वाला पार्ट विजिबल रहेगा इन द साइड व्यू। ओके, अभी साइड व्यू अगर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, दिस विल बी लेफ्ट हैंड साइड व्यू, व्हाट विल बी इनविजिबल इन लेफ्ट हैंड साइड व्यू? होल ना, ये देखो, ये वाला होल नहीं दिखेगा और ये वाला होल नहीं दिखेगा इन द साइड व्यू। ओके, दीज टू होल्स विल नॉट बी विजिबल, एनीथिंग एल्स इज नॉट विजिबल। पीछे एज है, देखो ये वाला एज दिख रहा है आपको, दिस एज विल नॉट बी विजिबल इन द साइड व्यू, उसके लिए यहां पे देखो हिडन लाइन ड्रॉ की है। ओके, और कुछ है? कौन सा? ये वाला एज, दिस एज विल ऑल्सो बी शोन एज हिडन लाइन ओवर हियर। और देखो यहाँ पे जब मैं कर्सर को लेके जा रहा हूं तो आपको दिख रहा है यहाँ पे रिब नीचे तक है। ओके, वो तो सामने दिख भी रहा है, बट इफ यू ऑब्जर्व यहाँ पे देखो, दिस लाइन इज गेटिंग ज्वाइन ना। ओके, ये लाइन भी आपको हिडन लाइन से ड्रॉ करना पड़ेगा। ये लाइन कौन सा है, ये जो बता रहा है, ये पीछे जा रहा है, देखो ये सरफेस, ये सरफेस, ये सरफेस का ये वर्टिकल लाइन और ये जो वर्टिकल लाइन है ना, देखो आई हाईलाइट दिस इज वर्टिकल लाइन, दिस इज वर्टिकल लाइन एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल। तो इफ यू सी द साइड व्यू, ये देखो इधर से इधर नीचे हिडन लाइन आएगा, इधर से इधर वर्टिकल हिडन लाइन आएगा और इधर से इधर हॉरिजॉन्टल हिडन लाइन आएगा। इज इट क्लियर? ओके, और ये वाला एज जो है इसका भी लेफ्ट हैंड साइड व्यू में हिडन लाइन आएगा। हियर आल्सो यू कैन सी वन हिडन लाइन इज देयर। इज इट क्लियर? ओके, टॉप व्यू में कौन सा हिडन लाइन आएगा वो भी देखो। टॉप व्यू में सी, ये सिलेंडर जो है ना, वो इसके बीच में इधर से देखो, इफ आई गो हियर कैन सी दिस गेटिंग हाईलाइटेड। ओके, तो ये सिलेंडर का इधर हाईलाइट में हिडन लाइन आएगा। और क्या हिडन लाइन आएगा? ये देखो, ये वाला एज है ना, ये वाला एज, और ये सिलेंडर का ये वाला एज, ये दोनों देखो टॉप व्यू में ये वाला हिडन आया। और क्या हिडन आएगा? ये पूरा होल है ना अंदर, ये होल का थ्रू आउट हिडन लाइन आएगा लाइक दिस। ये वाला हिडन लाइन इसके बीच में ही आएगा, बस इतने पोर्शन के बीच में। ओके, एंड अलोंग विद दैट द सिलेंडर का पोर्शन भी हिडन आएगा। देखो टॉप व्यू कैसे दिखेगा, ये ऐसे कुछ टॉप व्यू दिखेगा, लाइक दिस यू विल गेट अ टॉप व्यू। ओके, साइड व्यू कैसे दिखेगा? ये ऐसे दिखेगा, एक्सेप्ट दिस लाइन है, ये लाइन नहीं आएगा, ये सॉलिड वर्क्स का इशू है। यहाँ पे भी ये कुछ अंदर जा रहा है, ये वाला पोर्शन नहीं आएगा। इज इट क्लियर? अभी ये हम लोगों को ड्रॉ करना है। ओके, सो व्हाट आई विल डू, आई विल अगेन शो यू द क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है हम लोग वो देखेंगे। ओके, नाउ वी हैव ऑलरेडी डिसाइडेड द मैक्सिमम डायमेंशंस, राइट? अभी ये इसको हम लोग पहले वापस कट करके रखते हैं। वी विल कट दिस एंड स्लाइटली आई विल मूव द प्लेन अहेड सो दैट रिब इज नॉट गेटिंग कट। एक्चुअल में आप लोग प्लेन मूव नहीं करोगे, एक्चुअल में प्लेन उधर ही रहेगा। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज आई एम मूविंग अहेड सो दैट द प्लेन इज नॉट गेटिंग कट। तो ये व्यू मेरे को ड्रॉ करना है। ओके, नाउ हियर यू कैन ऑब्जर्व we have already found maximum length, width and height, and we have decided that left hand side view will be drawn here. तो फ्रंट व्यू का बॉक्स हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं। ओके, सो आई विल सिलेक्ट प्रोजेक्शन लेयर, रेक्टेंगल, एंड फ्रॉम हियर व्हाट इज द लेंथ? 100। तो लेफ्ट साइड में जाना है एट द रेट -100, कॉमा हाइट कितना है? हाइट इज 136। सो अपवर्ड जाना है तो पॉजिटिव 136, एंटर। ओके, आई हैव ड्रॉन दिस बॉक्स। हियर यू कैन ऑब्जर्व ये बॉक्स एकदम एज तक आ रहा है। ओके, नेक्स्ट will be top view. So again select rectangle. From here I am going to draw the rectangle at the rate minus, left में जाना है, length is 100, so -100, comma width कितना है? 80, नीचे जाना है ना, तो -80, enter. Now in order to draw the side view I am going to take the projection. So in order to draw that projection I require here 45-degree line. Okay, now 45-degree line, what will be the angle? From here I will be starting, तो 0 से 90, 90 से 180, then कितना हुआ ये? 270 प्लस 45, 315 ना। तो 315 एंगल पे एट द रेट 150 एंगल सिंबल एंड 315 एंगल, दैट यू कैन डू। और सेकेंड मेथड भी बताया था ना मैंने लास्ट टाइम। तो नहीं, क्या करना है, हाँ -45 से भी कर सकते हो, या फिर सी वन मोर मेथड, लाइन सिलेक्ट किया, हियर यू कैन सी वन स्क्वायर इज गेटिंग ड्रॉन।
So I will join this point and this point, escape and then ex enter extend command and simply इसको आगे extend करना है. ये ऑटोमेटिकली 45 डिग्री का ही लाइन बनेगा, कुछ एंगल देखने का जरूरत नहीं है. नाउ वी कैन वेरीफाई द एंगल. यहाँ पे एंगुलर में जाओ और यहाँ पे एंगल मेजर करो, ये देखो 45 ही आने वाला है एंगल. Okay, so this is third method by which you can draw this 45 degree line. Okay, once this line is drawn, we can draw the box in the side view. So L, enter, take the projection of the height from the front view in the side view like this, and then take the projection of the width from the top view, and from here we will move up. Is it clear? So this box also we have drawn. समझ में आया सबको? ठीक है. So see, these two circles are visible in the top view, so these I will draw in top view. In the front view these two circles are visible, so I will be starting with this two circles in the front view. So from this side of the box, what is the horizontal distance of the center? 30. Diameter का half and vertical distance भी कितना रहेगा? 30. So I will go to AutoCAD, projection layer में line, make sure ortho is on. From this point horizontal distance कितना है? 30. Vertical distance कितना है? 30. I've got the center point of the circle. Now what is the diameter of inner circle? 30. तो radius कितना रहेगा? 15. So select outline layer, C, enter, select this center point, radius कितना है? 15, enter. Now the second circle, what is the outer circle diameter? 60. Radius कितना रहेगा? 30. So again राइट नाउ वी आर इन सर्कल कमांड ना, एस्केप किया तो वापस क्या कर सकते हैं? स्पेस बार, सेंटर पे क्लिक करो, कितना है रेडियस? 30. यू ऑब्जर्व सर्कल इज टचिंग हियर एंड हियर, मींस दिस ड्राइंग इज करेक्ट. ओके, अभी इतना होने के बाद हियर यू कैन ऑब्जर्व ये सेंटर लाइन वर्टिकल सेंटर लाइन से इधर गया, इधर से ऊपर हाइट कितना है? 36. सो आई विल ड्रॉ दिस वर्टिकल लाइन जिसका लेंथ कितना है? 36, एंड देन यहां से राइट में मूव करूंगा कितने डिस्टेंस से? 40. So vertically from this center, okay, so from this quadrant ऊपर कितना जाना है? 36, and then ये मैं अभी एंड तक पूरा ड्रॉ करूंगा. फॉर टाइम बीइंग आई विल ड्रॉ टिल एंड, मतलब ये मैंने क्या ड्रॉ किया? पूरा इधर तक ड्रॉ किया. ओके, फॉर नाउ, लेटर ऑन वी माइट चेंज दैट. अभी इधर से नीचे कितना आना है? 20. ओके, सो फ्रॉम देयर आई विल मूव डाउन, कर्सर को नीचे करो, 20, एंटर करो, नीचे आ गए. अभी देखो नेक्स्ट क्या करना है? लेफ्ट साइड में जाना है. नाउ लेफ्ट साइड में जब जाना रहेगा, टोटल डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू एंड इज हाउ मच? 40 प्लस 60 का हाफ 30, मतलब कितना है? 70. ओके, तो अभी 70 माइनस 20 तक आना है ना, बिकॉज दिस विड्थ इज हाउ मच? ये कितना है? 20 है, तो 70 माइनस 20 कितना हुआ? 50. तो लेफ्ट में कितना आएंगे हम लोग? 50. सो लेफ्ट साइड में कर्सर रखो एंड 50, एंटर, एंड देन मूव डाउन. डोंट क्लिक हियर, बिकॉज व्हाट हैपेंस, नियरेस्ट इज ऑन. इधर मैंने रख के क्लिक किया, ये लाइन टेढ़ा बनेगा, तो कभी भी ऐसे ये सर्कल पे क्लिक नहीं करना है. थोड़ा आगे जाके क्लिक करो एंड देन ट्रिम दैट, TR डबल एंटर, ट्रिम दिस पोर्शन प्रॉपर्ली, यू विल गेट हियर द पॉइंट. ओके, इतना पोर्शन ड्रॉ हो गया. ओके, नाउ व्हाट वी विल डू, वी कैन ड्रॉ द रिब ऑल्सो ना. नाउ रिब कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ये लाइन से स्टार्ट हो रहा है, और ये सर्कल को, आई मीन सिलेंडर को क्या हो रहा है? टेंजेंट. ओके, सो वी विल गो बैक टू AutoCAD. Rib is starting from here, so escape, L, enter. Rib is starting from here and rib is tangential, तो यहाँ पे tangent का symbol देखो यहाँ पे आया, so click here, we will get the rib. Now whatever portion is there on the top, that we will draw from the which view? Top view. Okay, तो अभी हम लोग क्या करेंगे देखो. First what we will do, this top view is symmetric. Okay, if you observe this view, इसका सेक्शनल व्यू हम लोग अभी बना रहे हैं, वो कंप्लीट नहीं हुआ है, बट जब हम लोग टॉप व्यू बनाएंगे ना तो सिमेट्रिक है. तो सिमेट्रिक टॉप व्यू, तो हम लोग क्या ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे? सेंटर लाइन. एक्चुअली वहां पे कौन सा लाइन आएगा? सेक्शन प्लेन आएगा, मीन सेक्शन प्लेन लाइन आएगा, कटिंग प्लेन लाइन. दैट आई विल ड्रॉ लेटर ऑन. पहले हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो सेंटर लाइन. तो यहाँ पे ट्राइंगल ढूंढेंगे, यहाँ पे एक सेंटर लाइन ड्रॉ किया मैंने. ओके, देन नेक्स्ट इफ यू सी दिस, ये सेंटर लाइन पे ये जो सेंटर दिख रहा है आप लोगों को, ये सेंटर से ये 20 का सर्कल में ड्रॉ कर सकता हूँ. अभी ये सेंटर मेरे को अगर चाहिए रहेगा तो हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन मैंने ड्रॉ किया है, मेरे को अभी ये वर्टिकल वाला सेंटर लाइन भी ड्रॉ करना पड़ेगा. बट ये सेंटर जो है, इट इज नॉट एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ दिस टॉप व्यू रेक्टेंगल. वो कहाँ पे ये सेंटर? फ्रॉम दिस पॉइंट 40 टूवर्ड्स राइट ना,
ओके तो अभी देखो क्या करने वाला हूं मैं, व्हाट आई विल डू, ये पॉइंट से 40 टूवर्ड्स राइट, ओके सो आई विल सिलेक्ट प्रोजेक्शन लेयर, ये पॉइंट से हम लोग राइट में कितना जाएंगे 40, एंटर। 40 मीन्स basically from this point I have moved towards right by a distance of 40 to get this point, okay अभी इसको कहां लेके आएंगे हम लोग टॉप व्यू में, so basically now I have got this center, okay तो अभी क्या करेंगे हम लोग, I will select outline layer, circle, what is the dimension of inner circle, diameter is 20, radius कितना रहेगा 10, so यहां से radius is 10, enter, again space bar, what is the radius of second circle, 40 डायमीटर है तो रेडियस कितना रहेगा 20, सो फ्रॉम हियर रेडियस इज 20, ये सेकेंड सर्कल बन गया, लेट मी चेक, हाँ रेडियस 20 है। नाउ व्हाट वी विल डू, ये नीचे वाला जो सर्कल है ना वो भी ड्रॉ करेंगे, इसका डायमीटर कितना है 60, तो रेडियस कितना रहेगा 30, ओके सो स्पेस बार अगेन, सॉरी सी एंटर, and from here what is the radius 30, okay here you can see it is touching this point, okay now once this is drawn, next what I can do now, I can complete the front view, front view के लिए क्या करना है, I will select projection layer, line, ये पॉइंट का प्रोजेक्शन हम लोग ऊपर लेके जाएंगे till this point, and then same way ये पॉइंट का प्रोजेक्शन हम लोग ऊपर लेके जाएंगे till this point, okay after that next what we are going to do, ये वाला जो सर्कल है, ये वाला जो सर्कल है यहाँ पे, इसका भी प्रोजेक्शन हम लोग यहाँ तक लेके जाएंगे, ये नीचे आ रहा है ना देखो, ये इधर है ना नीचे, उसके लिए नीचे तक आया हम लोग प्रोजेक्शन लेके यहाँ तक आए, ओके नाउ व्हाट आई विल डू, एस्केप किया, आई विल सिलेक्ट आउटलाइन, आई विल ड्रॉ दिस लाइन, ओके देन आई विल ड्रॉ फ्रॉम दिस पॉइंट, आई विल ड्रॉ दिस लाइन, ओके एंड देन ये एंड तक है ना पूरा, तो वो वाला एंड वाला लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन भी मैंने ड्रॉ किया, अभी क्या बाकी है, बीच का होल बाकी है ना, तो होल के लिए आई कैन टेक प्रोजेक्शन ऑफ दिस, सो फ्रॉम प्रोजेक्शन लेयर आई विल ड्रॉ दिस, ये पॉइंट का प्रोजेक्शन ऊपर लेके जाएंगे, अभी देखो इफ यू सी दिस क्वेश्चन, दिस होल डेप्थ इज नॉट गिवन एनीवेयर, सो ये होल इधर से ऊपर से स्टार्ट हो रहा है पूरा नीचे तक रहेगा, ओके तो पूरा नीचे तक ड्रॉ करना है हम लोगों को, सो आई टेक प्रोजेक्शन टिल हियर ओनली, सेम वे ये इनर पार्ट ऑफ द सर्कल का प्रोजेक्शन हम लोग यहाँ पे लेके आएंगे, एंड देन आई विल सिलेक्ट हिडन लेयर एंड आई विल ड्रॉ हिडन लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट टू द टॉप, यहाँ तक हिडन लाइन ड्रॉ किया और इधर भी पूरा टॉप तक हिडन लाइन ड्रॉ किया। नाउ द थिंग इज व्हेन वी आर ड्रॉइंग द सेक्शनल व्यू, यहाँ पे ये पूरा डार्क लाइन आएगा, हिडन लाइन नहीं आने वाला, ओके ये मैंने फ्रंट व्यू एक्सप्लेन करने के लिए हिडन लाइन ड्रॉ किया है, तो इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग हिडन लाइन आई विल नाउ ट्रांसफर इट टू विच वन, आउटलाइन, तो इसको हम लोग आउटलाइन में रखेंगे डायरेक्ट, ओके अभी देखो व्हाट आई विल डू, आई वांट टू ड्रॉ हैचिंग लाइंस नाउ, ओके अभी यहाँ पे बहुत सारा प्रोजेक्शन लेयर्स का लाइन बना हुआ है, तो आई विल टर्न ऑफ प्रोजेक्शन लेयर फर्स्ट, नाउ इफ यू ऑब्जर्व द गिवन क्वेश्चन, ओके इसमें देखो व्हेन यू ड्रॉ द सेक्शनल व्यू, हियर यू कैन ऑब्जर्व इधर से इधर का जो लाइन था ना, सी इन द सेक्शनल फ्रंट व्यू, यहाँ से लेके यहाँ तक वो लाइन विजिबल नहीं है, तो ये लाइन मेरे को पूरा हटाना पड़ेगा, तो ट्रिम करो, टी आर डबल एंटर, दिस पोर्शन विल बी ट्रिम, दिस पोर्शन विल बी ट्रिम, दिस पोर्शन विल बी ट्रिम, और क्या ट्रिम होगा, ये जो सर्कल का ये वाला आर्क है ना इतना सा, वो भी ट्रिम होगा, सेक्शनल फ्रंट व्यू में नहीं दिखने वाला है, ये पूरा ऑब्जेक्ट देखो एक ऑब्जेक्ट बन गया अभी, ओके एस्केप करना है। नाउ व्हाट आई वांट हैचिंग लाइंस राइट, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई विल गो एंड सिलेक्ट जीरो लेयर जो डिफॉल्ट लेयर है, एंड आई विल क्लिक ऑन दिस हैचिंग option, okay, or I can type H and then enter. Once I type H and enter, here you have to select ANSI 31 and then click here one time and click here and then press escape. So sectional front view is completed. Is it clear? Okay, now once the sectional front view is completed, you can go to text, इसको text को नाम दो, यहाँ पे मतलब front नाम दो, वहाँ पे sectional front view, okay, select the dimension layer, give the name, give the dimensions to the front view, sectional front view,
Okay, then again I will turn on projection layer. Now which view we are going to complete? Top view. Okay, अभी देखो I will turn off the section because I want normal top view. तो अगर इसका हम लोग top view देखेंगे तो top view में already I have drawn this circle and this circle ना. अभी क्या बाकी है? ये सिलेंडर का ये पूरा रेक्टेंगल बाकी है. तो क्या करना है? यहाँ पे हम लोग आए, ये देखो ये सिलेंडर का ये पॉइंट है ना, ये सिलेंडर का ये पॉइंट ऑलरेडी नीचे लेके आए हम लोग. वो कहाँ पे मिल रहा है? देखो यहाँ पे मिल रहा है. सो आई विल सिंपली सिलेक्ट आउटलाइन लेयर, क्लिक ऑन रेक्टेंगल, और ये जो सिलेंडर का पॉइंट इधर आ रहा है यहाँ से डायरेक्ट एक रेक्टेंगल हम लोग ड्रॉ करेंगे. तो दिस सिलेंडर हैज बीन ड्रॉन. नाउ द ओनली थिंग इज व्हेन यू सी फ्रॉम द टॉप साइड, सिलेंडर का ये वाला जो एज रहेगा ना, वो क्या रहेगा? हिडन रहेगा. सी ये अंदर वाला जो पोर्शन है सिलेंडर का, ये हिडन है बिहाइंड बिलो दिस पार्ट. ये जो पूरा पोर्शन है ना, इसके नीचे जा रहा है सिलेंडर. तो वो वाला पोर्शन हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? हिडन. सो व्हाट आई विल डू, TR डबल एंटर, इतना पोर्शन ट्रिम करो, इतना पोर्शन ट्रिम करो, एस्केप एंड डिलीट दिस पार्ट, एंड देन सिलेक्ट हिडन लेयर एंड इधर हिडन लाइन ड्रॉ करो. फ्रॉम हियर टू हियर आई विल ड्रॉ हिडन लाइन. इज इट क्लियर? ओके, अभी देखो वन मोर थिंग है वेरी इंपॉर्टेंट. स्लाइट वेरिएशन इन द क्वेश्चन आई विल टेल यू क्या हो सकता है. सपोज ये सिलेंडर है ना, इधर तक नहीं है, ये होल के अंदर भी आ रहा है. मतलब इसका नीचे का डायामीटर इतना बड़ा है कि ये अगर इधर अंदर आ रहा है तो ये होल के अंदर का तो सिलेंडर दिखेगा ना. तो इधर देखो क्या होगा, ये जो लाइन अगर सपोज ये इधर से लाइन बन रहा है तो क्या होने वाला है, इधर से इधर डार्क आएगा, इधर से इधर तक हिडन आएगा, फिर ये होल के अंदर डार्क आएगा वापस. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ऐसा नहीं है कि ये पूरा हिडन आने वाला है हमेशा. इट डिपेंड्स ऑन द डायमेंशन. इज इट क्लियर? सो यू हैव टू बी केयरफुल. देन नेक्स्ट व्हाट आई कैन डू इन द टॉप व्यू, ये जो सर्कल है ना, इसका प्रोजेक्शन लेके आके हम लोग हिडन लाइंस ड्रॉ करेंगे. सो आई विल सिलेक्ट द प्रोजेक्शन लेयर, ये पॉइंट का प्रोजेक्शन हम लोग यहाँ तक लेके आएंगे, देन ये पॉइंट का प्रोजेक्शन भी यहाँ तक लेके आएंगे, और ये सिलेंडर है ना पूरा पोर्शन, इसके अंदर थ्रू आउट हिडन लाइन आएगा. सो आई विल सिलेक्ट हिडन लेयर लाइन, एंड दैट हिडन लाइन विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, इट विल एंड ओवर हियर. सेम वे ये वाला भी इधर से स्टार्ट होगा, इधर एंड होगा. इज इट क्लियर? ओके, नाउ एनीथिंग एल्स इज रिमेनिंग इन द टॉप व्यू. सी इन द टॉप व्यू ये एज नहीं दिखेगा, ये दिख रहा है ये वाला एज, ये दिस एज इज नॉट विजिबल इन द टॉप व्यू. तो ये एज का फ्रंट व्यू से प्रोजेक्शन लेके आना है हम लोगों को. सो हियर यू कैन ऑब्जर्व दिस इज द एज, ये वाला एज है ना, उसका ऑलरेडी प्रोजेक्शन हम लोग, ये वाला एज है. सी दिस एज, ये जो एज मैंने सिलेक्ट किया, फ्रंट व्यू में ये एक पॉइंट रहेगा. अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी लॉजिकल पार्ट. साइड व्यू में ये एज है, बट फ्रंट व्यू में ये क्या है? पॉइंट है. तो ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, इसका हम लोग प्रोजेक्शन ऑलरेडी नीचे लेके आए हैं यहाँ पे. ओके, बट बिफोर दैट व्हाट वी कैन डू, ये जो पोर्शन है ना, ये ऊपर वाला पोर्शन, इसका भी प्रोजेक्शन लेके आते हैं. और ये वाला जो टॉप व्यू में बॉक्स है, हियर यू कैन सी, ऑब्जर्व दिस बॉक्स, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन हम लोग कंप्लीट करेंगे पहले. तो अभी हम लोग क्या करेंगे, टॉप व्यू से ये पॉइंट का पहले प्रोजेक्शन लेके आएंगे नीचे. सो दिस प्रोजेक्शन आई विल टेक, सिलेक्ट प्रोजेक्शन लेयर, ये पॉइंट का प्रोजेक्शन हम लोग नीचे लेके आएंगे लाइक दिस. नाउ व्हाट इज द विड्थ ऑफ दिस, इसका विड्थ कितना है? 60. इसका विड्थ कितना है? 80. तो ये 60 विड्थ में ही बनाना है हम लोगों को. इज इट क्लियर? तो ये 60 विड्थ रहेगा, तो मतलब ये लेंथ कितना रहेगा? 30. सो आई विल सिलेक्ट आउटलाइन, L एंटर, इधर से ऊपर कितना जाएंगे? 30. एंड देन टूवर्ड्स राइट आई विल मूव लाइक दिस, इधर तक आना है, राइट? इधर तक आना है ना, इधर तक. सो ये यहां तक आएगा. ओके, तो ये वाला पोर्शन भी हिडन हो जाएगा ना सिलेंडर का. अरे समझ रहे हैं क्या? ओके, सो दिस पोर्शन विल ऑल्सो गेट हिडन बिकॉज ये सिलेंडर का पोर्शन वापस नीचे जा रहा है ना. ओके, देखो ये छोटा पोर्शन दिख रहा है आपको, ये वाला पोर्शन भी हिडन होने वाला है. सो दैट पोर्शन आई विल मेक हिडन लेटर ऑन. अभी इधर भी ड्रॉ करते हैं हम लोग. L एंटर, इधर से नीचे कितना जाना है वापस? 30. एंड देन फ्रॉम हियर आई विल ज्वाइन हियर टिल दिस पॉइंट. अभी देखो ये पोर्शन भी हिडन होना चाहिए था. सो TR डबल एंटर, ट्रिम दिस पोर्शन, एस्केप, डिलीट दिस hidden line, and again draw the hidden line properly.
तो ये पॉइंट से ये पॉइंट तक पूरा हिडन लाइन आएगा। ओके, इज इट क्लियर? अभी देखो टॉप व्यू में हम लोगों ने इतना पोर्शन बनाया। ओके, अभी क्या बाकी है? रिब। तो रिब के लिए क्या करना है? टेक द प्रोजेक्शन ऑफ रिब। सो सिलेक्ट प्रोजेक्शन लेयर, एल एंटर, रिब का एंड पॉइंट ढूंढो। यहाँ पे ये स्क्वायर आया मतलब ये एंड पॉइंट है, लिख के भी आया। इसका प्रोजेक्शन नीचे लेके जाना है लाइक दिस। नाउ व्हाट इज द विड्थ ऑफ द रिब? 12। सो रिब इज स्टार्टिंग फ्रॉम विच पॉइंट? ये वाला पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है ना, इसका प्रोजेक्शन अच्छे से ध्यान रखो, यहाँ पे आ रहा है। तो फ्रॉम हियर द रिब इज गोइंग टू स्टार्ट। ओके, सो रिमेंबर दिस लाइन, एल एंटर, फर्स्ट आई विल सिलेक्ट आउटलाइन, देन एल एंटर। यहां से ऊपर कितना जाना है? 6, एंड देन यहां से यहां तक आना है। सेम वे फ्रॉम हियर 6 enter and then till this projection we will move. Then observe, if you see the question, this rib is plane surface and it is getting intersected by what? Curve surface. तो यहाँ पे ये curve of projection आने वाला है ना, curve of intersection आने वाला है. So that curve I have to draw here, and in AutoCAD I have told you we draw the curve in which direction? Anti-clockwise. तो इधर से anti-clockwise किया तो ये अंदर आएगा, हम लोगों को बाहर की तरफ चाहिए, तो हम लोग कौन सा वाला कर्व ड्रॉ करने वाले? आर्क नीचे वाला. सो आई विल गो टू आर्क, स्टार्ट सेंटर एंड, दिस इज स्टार्ट पॉइंट, सेंटर पॉइंट अराउंड 1 mm, यहाँ पे लिख के आता है देखो 1 या 2 mm, 1 mm नीचे जाना है, एंड देन यहाँ पे कहीं पे भी एक क्लिक करना है. सो वी हैव गॉट दिस आर्क. अभी इसको ऊपर मिरर करना है. सो एम आई एंटर, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, एंटर, सिलेक्ट एनी 2 पॉइंट्स ऑफ द मिरर लाइन एंड क्लिक नो. तो ये मिरर हो गया. ओके, एनीथिंग एल्स इज रिमेनिंग इन द टॉप व्यू? हाँ, दैट एज इज रिमेनिंग ना. कौन सा एज बाकी है? सी, ये वाला एज बाकी है. दिस एज इज रिमेनिंग हिडन लाइन इन द टॉप व्यू. ओके, सो ऑलरेडी वी हैव टेकन प्रोजेक्शन ऑफ दैट. ये देखो ये है ना, वो एज यहाँ पे ये पॉइंट बना है, इसका प्रोजेक्शन वी हैव टेकन लाइक दिस ओवर हियर. ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ये वाला प्रोजेक्शन आ रहा है, याद रखना है प्रोजेक्शन, एंड देन सिलेक्ट हिडन line, and from this point to this point I will draw that hidden line. Okay, now we will see the complete sectional front view and top view. Okay, so right now you can see sectional front view is completed. Okay, then sectional top view is also completed. Is it clear? अभी क्या ड्रॉ करना है? साइड व्यू. कौन सा साइड व्यू? लेफ्ट हैंड साइड व्यू. तो अभी लेफ्ट हैंड साइड व्यू ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रोजेक्शंस. ओके, सो वी विल टर्न ऑन द प्रोजेक्शन लेयर अगेन. नाउ वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. अभी बहुत सारा प्रोजेक्शन लाइन आने वाला है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, सी दिस साइड व्यू, इफ यू सी फ्रॉम द साइड व्यू के केस में लेफ्ट हैंड साइड व्यू इज अगेन सिमेट्रिक, राइट? ये सिमेट्रिक है. तो व्हाट वी कैन डू, ये साइड व्यू में जो बॉक्स बना है ना, इसको हम लोग एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. नाउ द इशू इज, इफ आई ड्रॉ द वर्टिकल सेंटर लाइन, यहाँ पे गए तो यहाँ पे मेरे को जो ट्राइंगल मिलेगा ना, कुछ अलग ही मिलेगा, बिकॉज ये जो लाइन है ना, ये देखो यहाँ से स्टार्ट किया हम लोगों ने, तो इसका सेंटर कहाँ पे रहेगा? इसका सेंटर यहाँ पे रहेगा, बट इट इज नॉट द सेंटर ऑफ द बॉक्स. तो हम लोग क्या करने वाले हैं, अगेन आई विल सिलेक्ट द प्रोजेक्शन लेयर, सिलेक्ट द रेक्टेंगल, और ये जो ऑलरेडी बना हुआ बॉक्स है उसके ऊपर और एक बॉक्स बनाएंगे, so that I can now get the center. Are you understanding how I am finding the center? So I will select now center line, select किया, और यहाँ पे अभी देखो बराबर ट्राइंगल मिला, पहले नहीं मिल रहा था. एंड देन थोड़ा सा इसको ट्रैक करके नीचे लेके आना है, एंड देन आई विल ड्रॉ अ सेंटर लाइन ओवर. Okay, now what I am going to do, I will take projection of all these features over here. So what I will do, see, first I will take projection of ये 40 दिख रहा है आपको, 40 का ये ऐसे शेप दिखेगा ना, ये वाला 40 है ना, सो इसका प्रोजेक्शन पहले लेके आएंगे हम लोग. सो आई विल सिलेक्ट प्रोजेक्शन लेयर, एल एंटर, ये वाला सर्कल 40 वाला था, तो इधर से प्रोजेक्शन लेके आए यहाँ तक, इसका भी प्रोजेक्शन लेके आए यहाँ तक, एंड देन फ्रॉम हियर वी विल मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन टिल दिस पॉइंट. ओके, और इधर से भी हम लोग ऊपर जाएंगे टिल दिस पॉइंट, एंड देयर नाउ आई कैन ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन. सो आउटलाइन में जाना है और यहाँ पे
हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग अभी ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, नाउ एट द सेम टाइम इन द साइड व्यू हियर यू कैन सी दिस इज वन लाइन, ये लाइन दिख रहा है ना, अभी ये लाइन कौन से पार्ट का है, ये वाले एज का है, बराबर। तो ये एज का हम लोग फ्रंट व्यू से प्रोजेक्शन लेके आएंगे अभी। ओके, तो फ्रंट व्यू में ये वाला लाइन है, तो सिलेक्ट प्रोजेक्शन लेयर, एल एंटर, ये लाइन का प्रोजेक्शन हम लोग यहां पे लेके आए। ओके, अभी क्या करना है, दैट आई हैव टू ज्वाइन टिल हियर ना, पूरा एंड तक ज्वाइन करना है, देखो पूरा एंड तक ज्वाइन करना है। सो आई हैव ऑलरेडी ड्रॉन दिस लाइन, ऊपर वाला, तो नीचे वाला लाइन मैं क्या करूंगा, डार्क ड्रॉ करूंगा। तो आई विल सिलेक्ट आउटलाइन एंड आई विल डार्क दिस पोर्शन, इधर से इधर तक हम लोगों ने डार्क किया। हाँ हाँ 60 तक आएगा, तो इसको डिलीट करेंगे। फर्स्ट वी विल टेक द प्रोजेक्शन, सी ये वाला पूरा पोर्शन इधर तक है ना, तो ये वाला कितना था, 60 था। सो टॉप व्यू से हम लोगों को ये 60 वाला प्रोजेक्शन भी लेना पड़ेगा। तो प्रोजेक्शन में गए हम लोग, एल एंटर, ये वाले पॉइंट का प्रोजेक्शन यहां तक लेके आए, ये वाले पॉइंट का प्रोजेक्शन यहां पे लेके आए, एंड देन यहां से ऊपर जाना है। कहां तक जाना है, यहां तक, और फिर इसको भी ऊपर तक लेके जाना है, यहां तक, राइट। अभी वी विल सिलेक्ट आउटलाइन लेयर, लाइन, एंड देन आई विल ज्वाइन, इधर से इधर ज्वाइन करो, फिर इधर ज्वाइन करो और इधर ज्वाइन करो, ये वाला पोर्शन बन गया। ठीक है, अभी नेक्स्ट नेक्स्ट क्या करना है, देखो अभी ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग। ओके, तो ये अगर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है, अदरवाइज ये वर्टिकल लाइन से अच्छा हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, ये वाला एज ड्रॉ करेंगे। ये दिख रहा है आपको, ये एज। ओके, तो ये एज मेरे को अगर ड्रॉ करना है, तो फ्रंट व्यू से मेरे को ये प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा ना, फ्रंट व्यू से ये प्रोजेक्शन लेके आना पड़ेगा यहाँ पे। सो आई विल सिलेक्ट दिस एज, ये वाला जो एज है इसका प्रोजेक्शन लेके आएंगे हम लोग। प्रोजेक्शन में जाना है, ये एज मतलब ये अभी ये इधर इधर से प्रोजेक्शन ले सकता हूँ। आई हैव टेकन दिस प्रोजेक्शन। अभी इधर से ये ऐसे वर्टिकली जा रहा है ना, बट ये जो होल रहेगा ये होल थ्रू आउट है, ये होल थ्रू आउट कहाँ तक है, ये हिडन लाइन तक है। तो इफ आई शो यू द लेफ्ट हैंड साइड व्यू, ये देखो ये हिडन लाइन तक वो होल है ना, तो आई कैन ड्रॉ नाउ दैट हिडन लाइन। ओके, तो आई विल सिलेक्ट हिडन लेयर, दिस लाइन, और इधर से लेके इधर तक वो हिडन लाइन था, इधर तक। ओके, इतना होने के बाद ये वर्टिकली होल भी ऊपर से लेके इधर तक ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। सो आई विल सिलेक्ट प्रोजेक्शन लेयर, लाइन, अभी ये जो होल है ना, ये वाला होल, इसका प्रोजेक्शन लेके आना है यहाँ पे, इधर तक प्रोजेक्शन लेके आए, इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे लेके आए, एंड देन फ्रॉम हियर आई विल मूव अप। ये ऊपर कहां तक जाना है, यहां तक, ये हिडन लाइन तक, एंड देन फ्रॉम हियर ऑल्सो यहां तक, एंड देन यहां से पूरा ऊपर तक क्या बनेगा, हिडन लाइन। सो आई विल सिलेक्ट हिडन लेयर, लाइन, यहां से पूरा ऊपर तक हिडन लाइन आएगा और यहां से भी पूरा ऊपर तक हिडन लाइन आएगा। इज इट क्लियर। अभी देखो इन केस ऑफ साइड व्यू, ये जो जब हम लोग साइड व्यू बना रहे हैं, तो ये सिलेंडर भी है ना, ये सिलेंडर कैसे दिख रहा है साइड व्यू में, रेक्टेंगल। तो इफ यू सी द लेफ्ट हैंड साइड व्यू, दिस सिलेंडर विल बी विजिबल एज अ रेक्टेंगल। तो हम लोगों को क्या करना है, देखो ये सिलेंडर का टॉप मोस्ट पोर्शन का प्रोजेक्शन ये साइड में लेके आना है। सो आई विल सिलेक्ट प्रोजेक्शन लाइन, ये पार्ट है ना ऊपर वाला, इसका प्रोजेक्शन हम लोग पूरा एंड तक लेके जाएंगे लाइक दिस, एंड नीचे वाला का तो ऑलरेडी प्रोजेक्शन है यहाँ पे। ओके, सो व्हाट आई विल डू नाउ, आई विल सिलेक्ट आउटलाइन एंड सिंपली आई विल ड्रॉ अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कहाँ से होगा, देखो हाँ, अभी यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होने का। ये 3 लाइन कौन सा था, ये वाला था ना शायद, हाँ यहाँ पे। सो फ्रॉम हियर द रेक्टेंगल विल स्टार्ट टिल हियर, मतलब यहाँ तक आएगा, इधर तक रहेगा रेक्टेंगल। सी दिस इज x1 y1 लाइन, और ये इसका ऑफसेट है ना, और ये वाला एक ऑफसेट है। इज इट क्लियर। तो ये पॉइंट से हम लोगों ने ये रेक्टेंगल ड्रॉ किया। बेसिकली ये देखो इसका प्रोजेक्शन, ये वाला लाइन का प्रोजेक्शन यहाँ पे आया और इधर से ऊपर देखो मैच हो रहा है, एंड देन ये रेक्टेंगल का प्रोजेक्शन इधर आया और इधर से इधर मैच हो रहा है। तो आई हैव ड्रॉन दैट रेक्टेंगल प्रॉपरली। नाउ इफ यू ऑब्जर्व दिस ड्रॉइंग, आई विल ड्रॉ दिस व्यू। ये देखो ये लाइन और ये लाइन साइड व्यू में कैसे दिखेगा, ये दिख रहा है ऐसे, इधर से ऐसे पूरा इधर तक डार्क है, फिर ये हिडन है,
देन ये हिडन है, ये हिडन है, एंड इधर से पूरा ऊपर तक डार्क है। ये मेरे को ड्रॉ करना है। समझ में आया क्या ड्रॉ करना है? सो व्हाट आई विल डू, ये पॉइंट का मेरे को प्रोजेक्शन चाहिए। बेसिकली ये जो एज है इसका प्रोजेक्शन मेरे को लगेगा। सो आई विल गो टू ऑटोकैड। ये इसका प्रोजेक्शन ऑलरेडी यहाँ पे लिया हुआ है हम लोगों ने। ओके अभी ये पॉइंट का प्रोजेक्शन लेना है। देखो ये जो दिख रहा है नीचे वाला, ये लाइन का प्रोजेक्शन मेरे को लेके आना है। सो आई विल सिलेक्ट प्रोजेक्शन लेयर, लाइन, और ये जो पॉइंट है, देखो कोई भी पॉइंट खाली नहीं रहेगा, हर एक पॉइंट का प्रोजेक्शन आना चाहिए साइड व्यू में। एक भी पॉइंट का प्रोजेक्शन नहीं है मतलब कुछ तो छूटा हुआ है ड्राइंग में। सो आई विल सिलेक्ट दिस पॉइंट, इसका प्रोजेक्शन हम लोग लेके आएंगे यहाँ पे। ओके नेक्स्ट व्हाट आई कैन डू, आई विल सिलेक्ट आउटलाइन, एल एंटर, फ्रॉम दिस पॉइंट टू द सिलेंडर, डार्क आएगा। ओके यहां तक क्या आएगा, डार्क आएगा। देन एस्केप, आई विल सिलेक्ट हिडन लेयर, इधर से नीचे इधर तक क्या आएगा, हिडन लाइन। ओके एंड देन फ्रॉम हियर टुवर्ड्स लेफ्ट, यहां तक भी क्या आएगा, हिडन लाइन, एंड देन यहां से इधर तक भी हिडन लाइन आएगा। ओके लेट मी चेक हियर सम इशू इज देयर विद द एज। ये दिख रहा है आपको थोड़ा सा बाजू में ज्वाइन हुआ है, ये क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे कुछ ट्रायंगल आया रहेगा। तो लेट मी रिकंस्ट्रक्ट दिस, आई विल डिलीट दिस लाइन, आई विल डिलीट दिस लाइन, एंड देन ये भी थोड़ा आगे गया है तो ट्रिम करो इसको। ओके एल एंटर, सिलेक्ट आउटलाइन, एंड फ्रॉम दिस पॉइंट आई विल जूम दिस। सी यहाँ पे ना, इधर देखो कुछ पॉइंट नियरेस्ट हुआ रहेगा, कुछ तो प्रॉब्लम हुआ रहेगा। अभी यहां से हम लोग नीचे जाएंगे यहाँ तक। ओके सेम वे हियर ऑल्सो, एल एंटर, फ्रॉम हियर आई विल मूव अप टिल दिस पॉइंट। ओके नाउ आई विल टर्न ऑफ द प्रोजेक्शन लेयर जस्ट टू अंडरस्टैंड कितना ड्रॉ हुआ है। ये इतना हुआ है। अभी क्या बाकी है, ये जो होल है ना, ये सर्कल का इधर थ्रू आउट सिलेंडर में होल आएगा। सो आई विल टर्न ऑन प्रोजेक्शन लेयर। ओके देन सिलेक्ट प्रोजेक्शन लेयर, लाइन, ये सर्कल का इधर प्रोजेक्शन लेके आना है, और ये सर्कल का भी यहाँ पे प्रोजेक्शन लेके आना है, एंड सिलेक्ट हिडन लेयर, लाइन, थ्रू आउट द सिलेंडर। एक देखो हाँ यहाँ पे मिड पॉइंट सिलेक्ट हो रहा है, डोंट क्लिक हियर बाय मिस्टेक। सिलेंडर के एज पे क्लिक करना है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक पूरा हिडन लाइन बनेगा। एंड सेम वे हियर ऑल्सो आई विल ड्रॉ द हिडन लाइन। Okay, then this rib is remaining ना, so in order to draw the rib I need to draw the projection। तो यहाँ से I will take the projection of the rib in the side view like this। Okay, and then ये rib का thickness यहाँ पे है ना, तो इसका भी projection हम लोग ऊपर लेके आएंगे। अभी ये rib जो है ये side view में कहाँ तक है, ये side view में देखो इधर से start हो रहा है ना, और ये cylinder तक है, तो ये कहाँ तक है उसका projection हम लोग लेके आए front view से, और ये वाला कहाँ से start हो रहा है, ऊपर से। सो आई विल टेक द प्रोजेक्शन टिल हियर। सो आई विल टाइप एल एंटर, ये रिब का यहाँ से प्रोजेक्शन उठाओ, यहाँ तक लेके आओ। सेम वे इसका प्रोजेक्शन यहाँ तक लेके आओ, एंड देन यहाँ से ऊपर जाना है। कहाँ तक जाना है, यहाँ पे ये मैं प्रोजेक्शन लेके आया था ना टिल हियर, ये रिब का देखो प्रोजेक्शन लेके आए हम लोग यहाँ पे टिल हियर आई विल ज्वाइन। एंड सेम वे सेकेंड पॉइंट का प्रोजेक्शन भी वहां तक लेके जाना है, ये पॉइंट। सो इफ आई वांट टू चेक ये डायमेंशन कितना है, ये 12 आना चाहिए राइट, ये देखो 12 आ रहा है। सो दिस इज करेक्ट। देन आई विल सिलेक्ट आउटलाइन, सिलेक्ट लाइन, एंड फ्रॉम हियर द रिब कहाँ तक रहेगा, ये पॉइंट तक है, तो यहाँ तक रिब को लेके जाना है, इधर तक रिब रहेगा। सेम वे यहाँ से रिब कहाँ तक रहेगा, यहाँ तक रहेगा। ओके देन इधर नीचे क्या आएगा, कर्व आएगा, आर्क आएगा। तो ये आर्क ड्रॉ करने के लिए आई हैव टर्न्ड ऑफ प्रोजेक्शन लेयर, नहीं तो बहुत ज्यादा दिखेगा ही नहीं वहां पे क्या चल रहा है। ओके नाउ अगेन दैट आर्क इज इन विच डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज, तो इधर से एंटी क्लॉकवाइज अंदर आएगा, तो ये वाला बाहर जाने वाला है ना, तो ये वाला आर्क ड्रॉ करना है। सो आई विल सिलेक्ट आउटलाइन लेयर, आर्क में स्टार्ट सेंटर एंड, दिस इज स्टार्ट पॉइंट, दिस इज 1 या 2 मिलीमीटर, यहाँ पे लिख के आया देखो ब्लू में। सो दिस इज सेंटर एंड एंड, यहाँ पे क्लिक करो ये साइड। नाउ मिरर करना है इसको। सो एम आई एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, सिलेक्ट एनी 2 पॉइंट्स ऑफ द मिरर लाइन,
एंड क्लिक नो, ये बन गया. Okay, now anything else is remaining inside you, we will check that. Okay, और कुछ बाकी है? हाँ देखो, वन थिंग यू नोटिस, इधर रिप के बीच में ये लाइन नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा? बिकॉज आई लेट मी एक्सप्लेन यू द व्हाई दिस लाइन इज नॉट देयर ऑफ द सिलेंडर. ये देखो, ये जो ऊपर वाला सिलेंडर का पार्ट है ना, उसका ये लाइन तो आएगा, बट ये नीचे जो है ना, ये नीचे यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है देखो, तो ये वाला लाइन पूरा नहीं आने वाला है यहाँ पे. ओके, तो रिप की इधर बीच में से कुछ भी लाइन नहीं जाएगा. तो बेसिकली यहाँ पे ये जो लाइन जा रहा है, इसको ट्रिम करना पड़ेगा. TR डबल एंटर, ये पोर्शन ट्रिम किया, ये पोर्शन ट्रिम किया. इज इट क्लियर? ओके, हिडन भी नहीं आएगा वहां पे. सो लेट मी चेक इफ एवरीथिंग इज कंप्लीटेड. वन टू थ्री फोर, 1 2 3 4 5 6 7 8. आई थिंक मोस्टली एवरीथिंग इज कंप्लीटेड. अभी इसके बाद क्या करना रहेगा? डायमेंशंस. डायमेंशंस कैसे देना है वो पता है ना सबको? ओके, सो फॉर एग्जांपल आई विल गिव सम फ्यू ऑफ द डायमेंशन. देखो डायमेंशन कैसे देना है. व्हाट आई विल डू इज आई विल सिलेक्ट डायमेंशन लेयर. ओके, सब डायमेंशन एक साथ देंगे. पहले हम लोग क्या करेंगे, ये अंदर वाले सर्कल से स्टार्ट करते हैं. तो ये सर्कल का रेडियस यहाँ पे दिया. सेकेंड, ये वाला सर्कल है. ओके, तो ये सर्कल का सपोज रेडियस यहाँ पे दिया हम लोग. देन थर्ड, ये वाला है, इसका रेडियस यहाँ पे कहीं पे तो दिया. देन नेक्स्ट, ये लेंथ 40 था ना क्वेश्चन में, इफ यू कैन रिकॉल दिस लेंथ वाज हाउ मच, 40. ये 40 दे दो यहाँ पे. ओके, देन इसके बाद रिप का कोई भी एक व्यू में थिकनेस देना है. आइदर यू कैन गिव इट इन टॉप व्यू और साइड व्यू. तो आई एम गिविंग इट हियर. ओके, डायमेंशन पे जाओ और यहाँ पे रिप का डायमेंशन दे दो 12. ओके, इतना होने के बाद ये वाला पोर्शन कितना है, सिलेंडर का विड्थ 80. सो दैट आल्सो डायमेंशन यू कैन गिव. ये डायमीटर, ये डायमेंशन कितना है, 80 है. देन इसके बाद ये वाला इधर सर्कल्स है ना, तो इधर डायमेंशन देना है. गो टू रेडियस, इसका रेडियस दो यहाँ पे 15 और इसका रेडियस यहाँ ये साइड में दे दो. अभी इसको एक ही लाइन में दो, थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए, ऐसा थोड़ा आइडिया करके देने का डायमेंशन. देन नेक्स्ट क्या रहेगा, और कुछ बाकी है, हाइट बाकी है ना. ओके, तो ये डायमीटर तो ऑलरेडी दिया है यहाँ पे, इधर देने का जरूरत नहीं है. देन इधर साइड व्यू में क्या दे सकते हैं हम लोग, कौन सा हाइट है? हाँ, 36 वाला हाइट. सो दिस हाइट आइदर यू कैन गिव हियर और हियर. तो डायमेंशन में जाएंगे, ये वाला हाइट था वो, इधर से इधर तक 36. सो दैट हाइट यू कैन गिव हियर, 36 वाला. कौन सा, 10 का? कौन सा? एक मिनट, हाँ लेट मी चेक. और कुछ बाकी है क्या वो देखते हैं. हाँ, ये 20 बाकी है ना रे. 20 ये वाला, ये दिस 20 इज रिमेनिंग. सो दैट वी कैन गिव. सो डायमेंशन में ये वाला 20 यहाँ पे दे सकते हो. देन ये वाला 20 अभी कहाँ पे देना है, इधर बीच में आएगा नहीं तो ये. प्रॉब्लम ये है कि फिर ये बीच में आएगा. ठीक है, अभी के लिए मैं यहाँ पे देखे रखता हूँ, ये ऐसे आएगा 20 डायमेंशन. बट जब मोनोक्रोम में जाएंगे ना हम लोग, ये भी ऐसे डार्क दिखेगा बीच में लाइन, वो प्रॉब्लम होने वाला है. तो मे बी दिस डायमेंशन वी कैन सी इफ इट इज पॉसिबल टू गिव इन टॉप व्यू. टॉप व्यू में दे सकते हैं क्या, हाँ ये लाइन आ रहा है ना, ये लाइन है बेसिकली, ये वाला लाइन, और ये सर्कल का यहाँ पे. हाँ, तो यहाँ पे भी दे सकते हैं हम लोग डायमेंशन. तो आई थिंक दिस डिस्टेंस नहीं है क्या, हाँ ये वाला है 20 है ना. तो दिस डिस्टेंस यू कैन गिव हियर 20. इज इट क्लियर? वही डिस्टेंस है वहां का ही हम लोगों ने टॉप व्यू में दिया. लाइक दिस यू कैन गिव द डायमेंशंस. देन आफ्टर दिस और क्या लिख सकते हो, टेक्स्ट में जाके, सपोज माय डायमेंशन लेयर इटसेल्फ इज टेक्स्ट, तो एनोटेशन में जाने का, यहाँ पे स्टैंडर्ड में जाने का, और एक साथ टेक्स्ट हाइट बढ़ा देने का. नहीं तो हर एक बार में बढ़ाना पड़ेगा. यहाँ पे टेक्स्ट हाइट 5 करना है. ओके, एंड अप्लाई करके क्लोज करना है. तो अभी क्या करना है, टेक्स्ट में जाके मल्टी लाइन टेक्स्ट क्लिक करो, एंड देन बिलो दिस व्यू
you can give your name sectional front view एंड एस्केप करो। अभी देखो ये जो इफ आई सिलेक्ट दिस टेक्स्ट एंड इफ आई सिलेक्ट दिस, इसका हाइट यहाँ पे डिफॉल्ट में कितना बता रहा है 3, तो ये इसको मेरे को 5 करके एंटर करना है, एस्केप करना है, तो ये 5 जितना अभी बड़ा हो गया टेक्स्ट। ओके, देन यू कैन मूव इट प्रॉपरली, ऑर्थो ऑफ करने का, मूव करने के टाइम पे। अभी आपको समझ में आया डिफॉल्ट में टेक्स्ट हाइट कितना है 3 है, तो इसको मैं चेंज करूंगा। कैसे चेंज करना है, गो टू दिस ड्रॉप डाउन, यहाँ पे जाना है मैनेज टेक्स्ट स्टाइल में, और यहाँ पे ये हाइट जो है ये 0 मतलब वहां पे 3 है, याद रखो यहाँ पे 0 है बट वहां पे एक्चुअल में कितना हो रहा है 3, तो वो अलग रेशियो में चल रहा है यहाँ पे। तो आई विल टाइप हियर 5 एंड अप्लाई एंड क्लोज। अभी मेरे को बार बार जाके टेक्स्ट हाइट बदलने का जरूरत नहीं है, हमेशा टेक्स्ट हाइट 5 पे ही आएगा। तो मल्टी लाइन टेक्स्ट सिलेक्ट करो एंड देन नेम दिस व्यू। ये व्यू कौन सा है, टॉप व्यू, तो टी डॉट वी डॉट एस्केप एंड देन दिस इज विच व्यू, राइट साइड में बना है, लेफ्ट हैंड साइड व्यू। सो सिलेक्ट मल्टी लाइन टेक्स्ट, एनीवेयर वी विल राइट लेफ्ट हैंड साइड व्यू एंड देन इसको सिलेक्ट करो एंड सिलेक्ट दिस ग्रिप एंड ये पॉइंट का इधर ये बंद करो, पहले ऑर्थो ऑफ करो, ये पॉइंट का रेफरेंस लो और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड व्यू को रखो। इज इट क्लियर? ओके, सो इफ यू सी दिस इन मोनोक्रोम, कंट्रोल P, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF, आपको A4 शीट सिलेक्ट करना है फॉर प्रिंट आउट। A3 मैंने बताया था वो ऑटोकैड एग्जाम के लिए रहेगा, तो सिलेक्ट A4, डिस्प्ले टू प्लॉट में सिलेक्ट विंडो, विंडो को थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करना है, तो विंडो में जाओ, बॉर्डर के बाहर से ड्रॉ करो विंडो को, बहुत ज्यादा दूर से नहीं करने का, लाइक दिस। आई विल सिलेक्ट अ विंडो, okay, then select monochrome, plot object line should be on, landscape करो, fit to paper, center the plot, apply to layout and preview. So you can see how the preview is going to look like. Only thing here which is remaining is that title box. Is it clear? यहाँ पे भी एक सेंटर लाइन बाकी है ना, तो वो सेंटर लाइन भी चाहिए तो दे सकते हैं हम लोग। अभी इसको हम लोग कैंसिल करते हैं, और इफ आई सेव दिस ना, ये प्रिंट सेटिंग भी सेव हो जाएगा अभी, तो मेरे को बार बार वो सब सिलेक्ट करने का जरूरत नहीं है। देखो कंट्रोल P किया और प्रीव्यू पे किया, तो वापस मुझे कुछ सिलेक्ट करने का जरूरत नहीं, बराबर दिखेगा प्रीव्यू। प्रिंट का भी सेटिंग सेव होता है। ओके, देन आई विल ड्रॉ दैट सेंटर लाइन। देखो यहाँ पे पे अटेंशन, आई विल सिलेक्ट सेंटर लेयर लाइन एंड यहाँ पे ये सेंटर लाइन भी हम लोग ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे ऑर्थो ऑन करो, सेम वे ये 2 सर्कल है, ये सर्कल है, इसका भी सेंटर लाइन ड्रॉ कर सकते हो। सो टेक द प्रोजेक्शन लाइक दिस, ड्रॉ दिस सेंटर लाइन, ओके, एंड ड्रॉ वर्टिकल सेंटर लाइन। इज इट क्लियर? नाउ वन लास्ट थिंग इज रिमेनिंग, यहाँ पे क्या करना होता है, सेक्शन प्लेन लाइन। अभी ये देखो, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन ये कैसे ड्रॉ करना है। सो एवरीवन पे अटेंशन, आई विल सिलेक्ट आउटलाइन और आई विल सिलेक्ट 0 लेयर एंड ये टोटल लेंथ कितना है यहाँ से एंड का, लेंथ ऑफ द फ्रंट व्यू इज हाउ मच 100। सो आई विल रिमेंबर दैट लेंथ, वो कितना है 100, और उसमें 10 और 10 20 एक्स्ट्रा में ऐड करूंगा, तो कितना आएगा 120। अभी देखो ये कैसे ड्रॉ करना है, आई विल सिलेक्ट पॉलीलाइन, ओके, आई विल क्लिक एनीवेयर आउटसाइड लाइक दिस। अभी मुझे एरो ड्रॉ करना है, सो ऊपर की तरफ जाना है, सो कितना डिस्टेंस रहेगा, सपोज ये 10 है, 10 एंटर। अभी मुझे यहाँ पे एरो ड्रॉ करना है, सो आई विल क्लिक ओवर हियर विड्थ। अभी ये विड्थ कितना रहेगा 1, ये स्टार्टिंग विड्थ है। यहाँ पे देखो रीड हियर, स्टार्टिंग विड्थ इज 1 एंड एंडिंग विड्थ ऑफ द पॉलीलाइन विल बी 0, तो 0 एंटर। ये देखो एरो बन रहा है। अभी ये एरो का लेंथ मेरे को चाहिए 3 मिलीमीटर, तो 3 एंटर करो। एक मिनट, अगेन आई विल क्लिक ऑन विड्थ, इनिशियल विड्थ इज 1 enter and final width is 0 enter and then length कितना है 3 enter। ये arrow बना। okay, now what I will do, again I will click on width,
बिकॉज सेक्शन लाइन का दोनों एंड्स थिक होता है ना, तो विड्थ पे रखा, यहाँ पे स्टार्टिंग विड्थ इज 1 एंटर, एंडिंग विड्थ इज 1 एंटर, और लेफ्ट साइड में 5 जाना है हम लोगों को, 5 एंटर। सेम वे राइट साइड में वापस इधर 5 बनाना है, तो टोटल 10 जाएंगे हम लोग, 10 एंटर। देन अगेन आई विल क्लिक ऑन विड्थ, ओके, विड्थ होगा 0 एंटर। अभी ये जो एक्चुअल ड्राइंग का लेंथ था ना, कितना था 100, तो ये 100 जितना लेंथ होगा, तो एंडिंग विड्थ भी दे दो यहाँ पे 0 एंटर, एंड देन दिस लेंथ विल बी 100 एंटर। देन यहाँ से अगेन आई विल ड्रॉ दैट थिक लाइन, so I will click on width, width will be 1, starting width is 1 enter, ending width is again 1 enter, and then horizontally कितना distance जाना है 10, so 10 enter। then after this escape and draw this arrow, ये arrow ये वाले लाइन के सेंटर से आएगा ना, तो अभी ये सेंटर मिलता है क्या चेक करते हैं, अगेन क्लिक ऑन पॉलीलाइन, यहाँ पे सेंटर नहीं आ रहा है, आ रहा है, हाँ आया, so click here and then click on width। अभी ये एरो का इनिशियल विड्थ क्या रहेगा 0, उल्टा जा रहे हैं हम लोग, तो इनिशियल विड्थ इज 0 एंटर, और एंड का विड्थ रहेगा 1, तो 1 एंटर, ये देखो एरो बनने लगा, एंड लेंथ रहेगा एरो का 3 एंटर, ये एरो का लेंथ बन गया। अभी ये जो लाइन है इसका वर्टिकल लाइन का विड्थ 0 है, तो अगेन क्लिक ऑन विड्थ 0 एंटर, स्टार्टिंग विड्थ, एंडिंग विड्थ अगेन 0 एंटर, एंड देन ये लाइन का लेंथ रहेगा 10 एंटर, एस्केप। ये क्या बन गया सेक्शन प्लेन लाइन। नाउ अलोंग विद दिस सी द क्वेश्चन, क्वेश्चन में ये सेक्शन का नेम क्या दिया है AA, सो आई विल गो टू प्रोजेक्शन, आई विल गो टू टेक्स्ट एंड आई विल राइट हियर A, एंड इसको ही कंट्रोल C करो, कंट्रोल V करो, और यहाँ पे रखो इसके नीचे, तो दिस इज सेक्शन AA। नाउ ये बराबर नहीं है नीचे रखा हुआ, तो इसको सिलेक्ट करो, ऑर्थो ऑफ करो, इसको पहले साइड में कहीं पे तो मूव करो, वापस इधर से उठा के इसके नीचे बराबर से इसको एडजस्ट करो। नाउ वंस दिस इज डन, बीच में का तो लाइन सेंटर लाइन आना चाहिए, तो आई विल सिलेक्ट दिस विथ लेफ्ट हैंड ग्रीन विंडो मेथड एंड आई विल पुट एवरीथिंग इन सेंटर लेयर। ये बन गया सेक्शन लाइन। अभी हम लोग क्या करेंगे, ओरिजिनल जो सेंटर लाइन था वो हटा दिया है ना यहाँ पे, ओके क्या करेंगे देखो, वी विल सिलेक्ट दिस एवरीथिंग, M एंटर, और इसको ये पॉइंट से मूव करेंगे, ऑर्थो ऑफ रखना है मूव करने के टाइम पे, एंड आई विल प्लेस इट ओवर हियर। नाउ दैट सेक्शन लाइन इज ऑल्सो विजिबल, इज इट क्लियर? सो इफ आई शो यू द PDF हाउ इट विल लुक लाइक इन द PDF, ये ऐसे दिखेगा। इज इट क्लियर? सो इन दिस वे यू हैव टू कंप्लीट दिस शीट।